سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑے۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لڑائی شروع ہونے والی تھی کہ محمد بن قاسم کو پہلی مایوسی ہوئی۔ اس کی نظر داہر پر تھی، لیکن داہر کا ہاتھی اسے پیٹھ پر اٹھائے پیچھے جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ داہر جگہ بدل رہا ہے، لیکن وہ اپنے لشکر کے بہت پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد ہاتھیوں کو بھی فوج کے آگے سے ہٹا لیا گیا۔ ابن ثابت محمد بن قاسم نے سالار محرز بن ثابت کو حکم دیا، آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر حملہ کرو۔ محرز کے سوار دستے سر پٹ دوڑے، ادھر سے بھی چند ایک سوار دستے بڑھے۔ شدید اور خون ریز تصادم ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ محرز بن ثابت پہلے حلے میں ہی شہید ہو گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھی چڑھ دوڑیں گے۔ محمد بن قاسم نے نفط اندازوں کو، جو آگ والے تیر انداز تھے، آگے کیا اور حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کو نشانہ بنائیں، لیکن داہر ہاتھیوں کو شاید فیصلہ کن حملے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تمام ہاتھیوں کو پیچھے کر لیا۔ محرز شہید کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اب سعید نے حملہ کیا۔ ایک بار پھر گمسان کا معرکہ ہوا۔ راجہ داہر احتیاط سے اپنے دستوں کو احکام دے رہا تھا۔ اس نے سعید کے حملے کے جواب میں اپنا ایک سوار دستہ آگے بڑھایا، مگر محمد بن قاسم نے عطا بن مالک کیسی کو بروقت آگے کر دیا۔ عطا کا دستہ پاب کاب تھا۔ اس کی تیز حرکت نے داہر کے دستے کو سعید کے دستوں تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ تاریخ معصومی اس جنگ کے تفصیلی بیان میں مستند معلوم ہوتی ہے۔ راجہ داہر کو مسلمانوں میں تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور مسلمان اس کی اتنی زیادہ جنگی طاقت اور ہاتھیوں سے مرعوب ہوتے بھی نہیں لگتے تھے۔ مسلمان جب حملہ کرتے تو رات کی کڑک جیسا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ ان کے نعرے جاندار اور ان کا جوش و جذبہ تر و تازہ تھا۔ راجہ داہر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ تو مجاہدین کے دباؤ سے پیچھے ہٹ ہی رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے داہر کے اس حکم کو دھوکہ سمجھا کہ داہر اس خیال سے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے کہ مجاہدین اس کے دستوں کے پیچھے لگے رہیں گے اور اتنا آگے چلے جائیں گے کہ انہیں دوسرے دستوں سے گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر محمد بن قاسم نے سعید اور عطا کو پیچھے ہٹا لیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان اب لڑنے والا کوئی دستہ نہیں تھا، لیکن میدان خالی بھی نہیں تھا۔ وہاں لاشیں بکھری پڑی تھیں، زخمی پڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔ ان میں سے بعض اٹھتے اور چلنے کی کوشش میں گر پڑتے تھے۔ دونوں طرف سے دو دو تین تین آدمی دوڑتے اور اپنے اپنے زخمی کو اٹھا کر یا سہارا دے کر پیچھے لے آتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک پارٹی الگ کر رکھی تھی۔ یہ مشکیزہ بردار پارٹی تھی۔ یہ وہ آدمی تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی کے قابل نہیں تھے، یا یہ ہادم قسم کے آدمی تھے۔ وہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے اٹھائے دونوں فوجیوں کے درمیان پڑے ہوئے زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ اسی پارٹی کے آدمی اپنے دستوں میں گھوم پھر کر مجاہدین کو پانی پلاتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ محمد بن قاسم نے پانی پلانے والوں میں ایک آدمی کو دیکھا جو اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو شک ہوا کہ یہ آدمی نہیں، عورت ہے۔ اگر یہ عورت نہیں تو ایک نوجوان لڑکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے بلایا اور گھوڑے کی پیٹھ سے جھک کر اسے ذرا غور سے دیکھا۔ اگر میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو تم مرد نہیں ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ اہل ثقیف کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھایا کرتی۔ پانی پلانے والی نے کہا، میں عورت ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں، کئی اور عورتیں مشکیزیں اٹھائے ہوئے پانی پلاتی پھر رہی ہیں۔ کیا تم اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ تیرا بھائی بھی آیا ہوگا تیرے ساتھ، ابن قاسم، عورت نے کہا۔ یہ سب میرے بھائی ہیں، میں اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہوں، یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ عورت اپنے لشکر میں غائب ہو گئی۔ پانی صرف زخمی پیتے تھے۔ دن کے وقت کوئی اور مجاہد ماہ رمضان کی وجہ سے پانی نہیں پیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ فیصلہ کرنے کی مہلت نہ ملی کہ عورتوں کو میدان جنگ میں رہنے دیا جائے یا انہیں پیچھے زخمیوں کے پاس بھیج دیا جائے۔ مہلت اس لیے نہ ملی کہ راجہ داہر نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا تھا۔ ہاتھی دوڑتے چنگاڑتے آ رہے تھے۔ ان کے ہدوں میں کھڑے آدمی ہاتھیوں پر برچیاں توڑ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر سعید اور عطا کے سوار دستے فوراً چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تقسیم پہلے سے طے شدہ تھی۔ ہر گروہ نے ایک ایک ہاتھی کو گھیرنا تھا۔
सवारों के पहुंचने तक नफ्त अंदाजों ने हाथियों पर आग वाले तीर बरसाए। हाथियों में खलबली मचाने के लिए यही तीर काफी थे। 2 तीर एक हाथी के हुदे में खड़े एक पर्ची बाज को लगे। उसके कपड़ों को आग लग गई। उसने हुदे में नाचना शुरू कर दिया। उसकी आग ने उसके एक साथी को भी जद में ले लिया। दोनों ऊपर कूदे और जमीन पर आ पड़े। वो संभलने या भागने की कोशिश कर रहे थे कि मुजाहिदीन के घोड़ों के नीचे आ गए। सूरज गरूब हो गया। हाथियों और मुजाहिदीन का मार्का अरूज पर था कि फेलबानों ने हाथियों को वापस ले जाना शुरू कर दिया। शाम होते ही लड़ाई बंद कर दी गई थी। इस रिवाज के मुताबिक हाथी उधर चले गए और घोड़े इधर आ गए। 3-4 आदमी जख्मी हो गए थे। फेलबानों के काबू से निकल गए। उन्होंने अपने लश्कर की सफों में ओदम बपा कर दिया। फिर तारीकी ने मैदान जंग पर स्याह पर्दा डाल दिया। 10 रमजान उल मुबारक 93 हिजरी बरोज जुमेरात तारीख इस्लाम और तारीख हिंद का एक अहम तरीन दिन है। उस रोज हक्को बातिल के मार्के का फैसला कुन मरहला शुरू हुआ था। गुज़िश्ता रात मुजाहिदीन ने जरा सा भी आराम नहीं किया था। उन्हें बता दिया गया था कि अगला रोज बहुत खतरनाक होगा और इसके लिए गैर मामूली तौर पर तैयारी की जरूरत होगी। क्या तुमने देखा नहीं कि दाहिर दूर अपने हाथी पर सवार तमाशा देख रहा था? मोहम्मद बिन कासम अपने सलारों से कह रहा था। वो देख रहा था कि हम किस हालत में हैं और आमने सामने जंग में हमारा अंदाज और हमारी लड़ने की अहलियत कैसी है। उसने आहर में हाथियों से हमला कराया था। वो जायजा ले रहा था कि हम हाथियों का मुकाबला किस तरह करेंगे। उसने रमजान में जंग ये सोचकर शुरू की है कि दिन को हम भूखे और प्यासे होंगे, इसलिए हम में लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। कल का सूरज कुछ और ही नज़ारा देखेगा। सहरी के वक्त लश्कर ने खा पी लिया। मैदान जंग में उन्होंने अपने किसी जख्मी साथी को नहीं रहने दिया था। सबको उठाकर ले गए थे और औरतें उनकी देखभाल कर रही थीं। मोहम्मद बिन कासम को खबरें मिल रही थीं कि दुश्मन क्या कर रहा है। राजा दाहिर ने अपने कमांडरों को बता दिया था कि आने वाला दिन फैसला कुन दिन होगा और ये मोहम्मद बिन कासम की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी फौज में जो जिंदा रहेंगे उनकी बाकी जिंदगी दाहिर की गुलामी में गुजरेगी और ये बदतरीन गुलामी होगी। हमारी फौज का वो आदमी खुशकिस्मत होगा जो मोहम्मद बिन कासम का सर मेरे पास लाएगा। राजा दाहिर ने कहा था। उस आदमी को हम अपने दरबार में जगह देंगे और वो 4 देहात का मालिक और किलादार होगा। रात को मायरानी फिर आ गई। वो खुश थी कि दाहिर लड़ाई में शरीक होने की बजाय पीछे रहा था। वो उसे कह रही थी कि अगले रोज भी वो पीछे रहे और अपने लश्कर को लड़ाए। ताहिर ने उससे कहा था कि वो आगे नहीं जाएगा। उसने मायरानी का दिल बहलाने के लिए झूठ बोला था। सुबह हुई तो दरिया सिंध के किनारे मैदान में कुछ और ही मंजर था। दाहिर का तमाम तर लश्कर लड़ाई की तरतीब में खड़ा था। राजा दाहिर लश्कर के वस्त में अपने हाथी पर सवार था। उसके साथ उसका बेटा जय सीना था। मुअर्रिख लिखते हैं कि उस रोज ताहिर की शान ही कुछ और थी। उसके आगे पीछे दाएं और बाएं 10,000 ज़दा पोश सवार खड़े थे। 10,000 घोड़ों का रो भी काफी था। 3,000 प्यादा फौज थी। अपने दरमियान अपने राजा को देखकर फौजी और ज्यादा चाको चुबान नजर आते थे। दाहिर के साथ हुदे में 2 खूबसूरत कनीजें भी मौजूद थीं और हुदे में बर्छियों और टेढ़े तीरों के अलावा शराब का जहीरा भी रखा हुआ था। दाहिर के हाथी के दाएं और बाएं तरफ ठाकुर घोड़ों पर सवार खड़े थे। मोहम्मद बिन कासम ने जब दुश्मन की फौज को देखा तो अपनी फौज की कमान में कुछ तब्दीलियां कर दी। उसने दुश्मन के तेवर बांप लिए थे। उसने तीर अंदाज दस्ते को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये गालबन इसलिए किया था कि दुश्मन की फौज का फैलाव अपनी फौज की निस्बत बहुत ज्यादा था। हर हिस्से को उसने तैयारी का हुक्म दिया। हर तीर अंदाज ने एक एक तीर कमान में डाल लिया। अब के मोहम्मद बिन कासम ने अपने लश्कर को इस तरतीब में रखा। एक साफ में कबीला आलिया के लोग थे, दूसरी साफ कबीला तमीम के जंगजुओं की थी, तीसरी साफ में बकर बिन दाइल के मुजाहिदीन थे, चौथी साफ में अब्दुल कैस के साथ उसका कबीला था और 5वीं साफ में अजदी कबीले के जंगजू थे। ये तरतीब मुकम्मल हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासम घोड़ा दौड़ाता अपने पूरे लश्कर में घूम गया। फिर लश्कर के साथ घोड़ा रोका और उसने अपने मुजाहिदीन के साथ जो हिताब किया वो आज भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीख में महफूज है। ए अहले अरब, तुम बातिल के पुजारियों का लश्कर अपने सामने देख रहे हो। ये लश्कर ना सिर्फ ये कि तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए आया है, बल्कि ये तुम्हें तबाह बर्बाद करने के इरादे से हमारे मुकाबिल आन खड़ा हुआ है। ये कुफार अपने बातिल मजहब के लिए लड़ने नहीं आए, बल्कि अपने अहलो अय्याल, मालो अमवाल, अपने घरों और अपने खजानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों की बाजी लगाने आए हैं। इनके दिलों में इन दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत है कि ये बहुत ही खतरनाक अंदाज से लड़ेंगे। ये जंग मामूली जंग नहीं होगी। तुम्हें बड़े ही मजबूत हौसले की ज़रूरत है। तुम राह हक पर जज्बा शहादत लेकर वतन से निकले हो और तुम्हारी टक्कर बातिल की कुव्वतों से है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। हर वक्त अल्लाह की मदद के तलबगार रहो।
तुम्हारे दिलों में कोई खौफ, परेशानी और वहम नहीं होना चाहिए। हमारी तलवारें इन कुफार के खून की प्यासी हैं, ये हमारे हाथों जलीलो ख्वार होंगे। अगर तुम दुनिया के जाहो जलाल को भी सामने रखो तो तुम्हें इन कुफार से बेअंदाज मालो दौलत हासिल होगा। तुम्हें इस जहान में भी सिला मिलेगा और असल अजर अगले जहान में अल्लाह देगा। ये ख्याल रखो कि जिस किसी को जहाँ कहीं भी खड़ा किया गया है और इसे हरकत के लिए जो इलाका दिया गया है वहाँ से वो ना हटे। ऐसा ना हो कि दाएं पहलू के आदमी बाएं पहलू में चले जाएं या पहलुओं के आदमी कलब में जा घुसें। सिर्फ इस सूरत में कोई आदमी अपनी जगह छोड़ सकता है कि वो किसी की मदद करते हुए किसी और जगह जा पहुंचा हो। याद रखो, पता नेक और परहेजगार को हासिल होती है। अल्लाह को वो लोग बहुत अजीज हैं जिनका मकसद नेक होता है। लड़ाई के दौरान आयाते कुरान का विर्द जारी रखो और ला हौला वला कुव्वता पढ़ते रहो। मोहम्मद बिन कासम का हिताब खत्म हुआ तो एक दो आदमी कबीला बकर बिन दाइल और एक दो आदमी बनी तमीम के मोहम्मद बिन कासम के सामने आन खड़े हुए। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, तुम लोग कोई शिकायत लेकर नहीं आए कि ये वक्त शिकवे और शिकायतों का नहीं। खुदा तुझे फतह और नुसरत अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, हम सबसे पहले अपनी जानों के नजराने पेश करने आए हैं। कुफार के लश्कर को देख, ये हाथी बदमस्त की तरह हमारे सामने खड़ा है और देख के इनके हथियार कितने अच्छे और कितने उम्दा हैं। ये भी देख के इनके पास राजाओं जैसे हाथी हैं। दुश्मन के चेहरों को देख, वो अपने हाथियों और अपनी जिरहों पर किस कदर मसरूर है। क्या तू हमें इजाजत नहीं देगा कि हमारे कबीले सबसे पहले कुफार पर हमला करें? खुदा की कसम, तुम मुझे अजीज हो, ए बनी तमीम और ए बनी बकर बिन दाइल। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपनी पूरी ताकत और ईमान के जज्बे से कुफार का मुकाबला करोगे। मोहम्मद बिन कासम अपने लश्कर से मुहातब हुआ, ए अहले अरब, बनी तमीम और बनी बकर बिन दाइल लड़ाई की बिस्मिल्लाह करने को बेताब हैं। मुझे यकीन है कि तुम सब उन्हीं की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेताब और बेकरार हो। इन दोनों कबीलों के दस्तों ने अल्लाह अकबर का ऐसा नारा लगाया कि ज़मीनों आसमान हिलते हुए महसूस होने लगे। इस नारे के बाद तमाम लश्कर से नारे बुलंद होने शुरू हो गए। इसका ये फ़ायदा हुआ कि मुजाहिदीन के लश्कर में अगर किसी के दिल पर खौफ हरास तारी था तो वो निकल गया। घोड़े हनहनाने लगे जैसे वो लड़ाई के लिए बेताब हो गए हों। मोहम्मद बिन कासम ने हाथ बुलंद करके लश्कर को खामोश कराया। ए अहले अरब, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, खुदा वंदे ताला से बख्शिश मांगो और इस्तग़फ़ार करो। खुदा वंदे ताला ने मुसलमानों को दो नेमतें अता की हैं, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना और दूसरी नेमत यह कि अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल करता है। अगर दिल को मजबूत रखोगे तो खुदा वंदे ताला तुम्हें दुश्मन पर गालिब करेगा।